شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آئیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی جانب۔ ان دنوں جبکہ حالات اچھے نہ تھے، اماں نے ہم بچوں کی خاطر مکان کا بالائی حصہ کرائے پر اٹھا دیا۔ اتنی قلیل آمدنی میں گھر کا گزارا کیسے چلتا؟ تاہم جوں کر کے میں نے گریجویشن مکمل کی اور ملازمت کی تلاش میں سرگرداں ہو گئی۔ اب گزارے کا تمام انحصار میری ہمت پر تھا۔ ان دنوں میرا معمول تھا کہ پڑوس سے روز اخبار منگواتی اور ضرورت ہے کا اشتہار دیکھتی، جہاں کہیں ملازمت کے لیے آسامی خالی ہوتی، درخواست دے دیتی تھی۔ ایک سال یوں ہی نکل گیا، میں درخواستیں دے کر تنگ آ گئی، کہیں ملازمت نہ ملی۔ سوچتی تھی شاید قسمت میں روزگار لکھا ہی نہیں، کبھی جی چھوڑ کر بیٹھ جاتی۔ فاقے ڈراتے تو پھر گھر سے نکل پڑتی، فارغ وقت میں ٹیوشن پڑھاتی، اماں سلائی کرتی تھیں، باقی بہن بھائی پڑھنے والے تھے اور ہم گھر میں کل 6 افراد تھے۔ میں گھر کا سہارا بننے کی فکر میں گھل رہی تھی۔ اخبار میں ملازمت کے لیے اشتہار دیکھنا اب بھی میرا معمول تھا۔ ایک بار نہایت ہی مایوسی کے عالم میں اخبار دیکھ رہی تھی کہ ایک اشتہار پر نظر پڑ گئی۔ ملازمت حسب منشا تھی اور ہمارے شہر میں تھی، لیکن انٹرویو کے لیے کمپنی نے اپنے ہیڈ آفس اسلام آباد بلایا تھا۔ ہمارے شہر سے اسلام آباد 12 گھنٹے بس کا سفر تھا، جبکہ کرایہ بھی میرے پاس نہیں تھا۔ کرایہ کا مسئلہ تو کسی سے قرض لے کر حل کیا جا سکتا تھا، اصل مسئلہ اماں جان سے اجازت کا تھا۔ وہ مجھے دوسرے شہر کسی طور اکیلے جانے نہ دیتی اور میرے ساتھ کوئی جانے والا بھی نہ تھا، پھر وہاں رہائش کا مسئلہ بھی تھا۔ ایک رات اسلام آباد میں رکنا پڑتا، کہاں ٹھہرتی؟ وہاں کوئی رشتہ دار نہ تھا، اکیلی لڑکی ہوٹل میں بھی نہیں ٹھہر سکتی تھی۔ جب میں نے اماں جان کو بتایا کہ ملازمت میں کافی مراعات ہیں، تنخواہ بھی اچھی ہے، تو انہوں نے جواب دیا، پہلے جو اتنی جگہ تم نے انٹرویو دیے ہیں، کیا وہاں کامیاب ہوئی ہو جو اب امیدیں باندھ لی ہیں؟ وہ بھی دوسرے شہر انٹرویو دینے جا رہی ہو؟ میں ہرگز اجازت نہ دوں گی کہ اکیلی اسلام آباد جا۔ ماں اب دعا دے کر روانہ کریں گی اور اجازت دیں گی تو میری کامیابی یقینی ہے۔ خدا جانے کیوں اس بار مجھے یہ یقین ہو چلا تھا کہ یہ ملازمت ضرور حاصل کر لوں گی، بشرط یہ کہ وقت پر انٹرویو دینے پہنچ جاؤں۔ میں ہرگز تم کو اجازت نہ دوں گی، دعا تو تب دے کر رخصت کروں گی کہ جب اجازت دوں گی۔ ماں کا فیصلہ قطعی تھا اور اب ان سے مزید بحث کرنا بیکار تھا۔ میں گونگوں کی کیفیت میں اداس بیٹھی تھی کہ اسی وقت میری سہیلی فرا آ گئی۔ اسے بھی ملازمت کی تلاش تھی، تاہم اس کے حالات اتنے برے نہیں تھے۔ اس کے ہاتھ میں اخبار کا تراشا بھی تھا۔ مجھے اس نے اشتہار دکھا کر کہا، حیا نادر موقع ہے، بڑی اچھی تنخواہ ہے اور مراد بھی خوب ہیں، قسمت آزمائی کرنی چاہیے۔ اماں مگر اجازت نہیں دیں گی فرا؟ میں نے منہ لٹکا کر کہا، مجھے تو اجازت مل جائے گی، میں تیری اماں کو منا لیتی ہوں، وہاں میری خالہ کا گھر ہے، رات کو وہاں رہ لیں گے، ٹھہرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انٹرویو دے آتے ہیں، آگے اللہ مالک ہے، میرے پاس تو کرائے کے پیسے بھی نہیں ہیں، تو اس کی فکر مت کر، وہ میں تم کو دے دوں گی۔ اس نے ڈھارس بندھائی تو مجھ کو امید کی کرن دکھائی دینے لگی۔ میں نے حامی بھری تو وہ میری والدہ کے پاس پہنچی۔ آئی نے فرا کو بھی انکار کر دیا کیونکہ میری ماں ذرا سخت قسم کی خاتون تھیں۔ فرا تو مایوس ہو کر چلی گئی، مگر میرے دل میں کھلبلی مچا گئی کہ جانا ضرور ہے، کیونکہ اب میں اکیلی نہیں تھی، کرائے کا مسئلہ بھی وہی حل کرنے پر تیار تھی۔ رات بھر سو نہ سکی، نیند نہ آ رہی تھی، کیا کرتی؟ جانے کیوں یقین سا تھا کہ جانے پر کامیابی ہوگی، شاید اس میں کچھ حکمت ہو۔ اگلے دن وہ مجھے فائزہ کے گھر ملی۔ فائزہ میٹرک کی طالبہ تھی اور وہ مجھ سے ٹیوشن پڑھتی تھی اور ہمارے پڑوس میں رہتی تھی۔ فرا بولی، میں تو جا رہی ہوں، تم نے چلنا ہے تو بتا دو، کیونکہ کل رات ہم نے 8 بجے روانہ ہونا ہے، میں تمہارا ٹکٹ لے رکھوں گی۔ میں نے بے اختیار کہہ دیا، لے لینا ٹکٹ، اماں کو میں کسی طرح منا لوں گی، میں یہ چانس کھونا نہیں چاہتی۔ اگلے دن دوپہر تک خاموشی رہی۔ شام 7 بجے گھر سے نکلنا تھا۔ یہ وقت سخت اذیت میں گزرا، ذہن کی سوئی اسی سوچ پر اٹک گئی کہ اسلام آباد انٹرویو دینے ہر صورت جانا ہے۔ 6 بجے قلم کاغذ اٹھایا اور کچھ سمجھ میں نہ آیا، ایک رقعہ اماں کے نام لکھا۔ پیاری اماں،
मुझे यकीन है कि ये नौकरी मुझे मिल जाएगी। अच्छी तनख्वाह, घर के किराया, पक एंड ड्रॉप, गैर मुल्की एजेंसी है। उनके पास बेहिसाब फंड्स होते हैं। फलाह बहबूद के काम करने वालों का प्रोजेक्ट है। मुराद भी ज्यादा हैं। खुदारा नाराज ना हो ना, बल्कि मुझे दुआएं देना। फरा भी मेरे साथ जा रही है। हमारे इलाके से इनको 4 लेडी वर्कर्स की जरूरत है। मैं अकेली नहीं हूं, फिक्र ना करना। परसों वापस आ जाऊंगी। आपकी बेटी हया। फरा के घर पहुंचकर मैंने ये रुका उसके भाई को दिया और उससे कहा कि जब बस पिंडी के लिए रवाना हो जाए तो तुम ये रुका मेरी वालिदा को दे देना। बेशक मैं अम्मा की इजाजत के बगैर रवाना हो रही हूं। अम्मा नाराज भी होंगी, मगर मुझे पता था कि एक नेक मकसद से जा रही हूं। जब इंटरव्यू देकर आ जाऊंगी तो मां गिले से लगा ही लेगी। 7 बजे हमको बस के अड्डे जाना था। फरा ने मेरा और अपना टिकट पहले से मंगवा लिया था। हम ठीक टाइम पर घर से निकले और लारी अड्डे पहुंचे। फरा का भाई हमको छोड़ने आया था। मैंने अम्मा से सिर्फ फरा के घर जाने की इजाजत ली थी, लिहाजा एक कपड़ों का जोड़ा तक साथ न लिया था। सोचा अपनी सहेली से एक जोड़ा मांग लूंगी। अगर बैग तैयार करती तो वालिदा जरूर सवाल करती कि फरा के घर ये बैग क्यों ले जा रही हो। हम बस में सवार हो गए। जो ही बस चलने लगी, इसी वक्त मेरी सहेली का दूसरा भाई दौड़ा हुआ आया और कहने लगा, बाजी फरा घर चली, अब्बा जान की तबीयत अचानक खराब हो गई है, उनको अस्पताल ले गए हैं। वो घबराकर सीट से उठ खड़ी हुई, कहने लगी, तुम अकेली ही चली जा। ये लो टिकट और ये पता है मेरी खाला के घर का। मैं अभी उनको फोन कर देती हूं। तुमको वहां कोई तकलीफ ना होगी। उनके घर को अपना घर समझना। फरा मैं अकेली नहीं जाऊंगी, ये कहकर बस से उतरने लगी। उसने तभी मुझको डांट दिया, कहा, बेवकूफ, तुम जाओ। रात में अकेली बस में मर नहीं जाओगी। बस मुसाफिरों से भरी हुई है, सभी इस्लामाबाद उतरेंगे और ये सब हमारे ही शहर के लोग हैं। सुबह 7 बजे लारी से उतरते ही इस नंबर पर फोन करना और खाला तुमको पता समझा देंगी और वो खुद तुमको लेने आ जाएंगी। गरज फरा ने इस कदर तसल्ली दी कि मैं मजबूर हो गई। उसने मुझे टिकट के अलावा कागज के पुर्जे पर पता भी लिख कर दिया जो बकौल उसकी खाला का था। जल्दी में ये गलती जरूर हुई कि मैंने इससे सफर खर्च के लिए रकम नहीं ली। अलबत्ता मेरे पास 300 रुपए थे, जबकि वापसी का टिकट भी लेना था। फरा लारी से उतरकर घर चली गई और लारी हमारे शहर से पिंडी के लिए रवाना हो गई, जहां हमको फैज़ाबाद उतरना था। जो खत अम्मा के नाम मैंने लिखा था वो उनको मिल गया। अम्मा सिवाय सब्र क्या कर सकती थी। फरा ने खुद जाकर उनको तसल्ली दी कि मैंने इस्लामाबाद वाली अपनी खाला को फोन कर दिया है, बस का नंबर भी लिखवा दिया है, उसको कोई परेशानी ना होगी। अब हाल सुनिए मेरा क्या हुआ और खुदा को क्या मंजूर था। मुसाफिर बस में तमाम रात जागती रही। सुबह 7 बजे हम मंजिल मकसूद पर पहुंचे। लारी अड्डे उतरकर मैंने लेडीज बाथ जाकर हाथ मुंह धोया और अपना हुलिया दुरुस्त किया। रात भर सफर की बेआरामी ने सोने न दिया और अब बेख्वाबी से आंखों के गिर्द हल्के नमूदार हो चुके थे। बहरहाल मुंह पर पानी के छींटे मारे और सोचा कि यहीं अड्डे पर ही चाय की प्याली पी लूं तो अखबार में दिए हुए पते पर वो दफ्तर तलाश करूंगी जिसमें आज दोपहर 2 बजे मुझे इंटरव्यू के लिए जाना था। जब चाय पीकर पैसे देने को पर्स खोला तभी हैरत की इंतहा ना रही कि पर्स में से वो 300 रुपए और फरा की खाला के घर के पते वाला पुर्जा गायब था। ये रकम इसी पुर्जे में लपेट कर फरा ने मुझे वापसी की टिकट के लिए दी थी। खुदा जाने ये रकम कब और किसने दौरान सफर निकाल ली थी। रात के किसी पहर जरा देर को मेरी आंख लग गई। शायद ये मेरे बराबर वाली नशिस्त पर बैठी किसी औरत की कारस्तानी हो। चलती बस में नींद की झपकियां तो आती ही है। अब तो मेरे पास इतने पैसे भी ना थे कि मैं कहीं फोन करूं। मैं अब लारी अड्डे पर खड़ी कशमकश में गिरफ्तार थी। पर्स में 2-4 सके पड़े थे, चाय वाले को दिए और अब खाली जेब रिक्शा पर कैसे इस्लामाबाद पहुंचूं और इंटरव्यू के लिए दफ्तर ढूंढूं। मैंने इंटरव्यू का इरादा तर्क कर दिया। यही फिक्र के वापस अपने शहर जाऊं तो कैसे, बगैर टिकट बस में चढ़ूं। कुछ देर तक अड्डे पर खड़ी यही सोचती रह गई। अचानक महसूस हुआ कि अड्डे पर खड़े कुछ होबाश लोगों की निगाहों ने मेरी परेशानी को महसूस कर लिया है।
आफियत इसी में जानी कि फौरन इस लारी में सवार हो जाऊं जो उस वक्त मेरे शहर की तरफ जाने को तैयार खड़ी है। मैंने अपना खाली पर्स संभाला, बस में सवार हो गई और एक औरत के बराबर वाली खाली नशिस्त पर बैठ गई। अब दिल धक धक कर रहा था, अपनी बेइज्जती के ख्याल से पसीना आ रहा था। अचानक कंडक्टर ने मुसाफिरों के टिकट चेक करने शुरू कर दिए। जब वो मेरे पास आया, मैं बुर्का में कांप रही थी, पसीने से शराबोर थी। उसने टिकट मांगा, मैं चुप रही। वो समझा मैं पर्स से टिकट निकाल रही हूं, आगे वाली सीटों की तरफ चला गया। पिछली सीटों से होकर वो फिर मेरी जानिब पलटा। बीबी टिकट दुखो। मैं चुप रही। उसने दोबारा यही जुमला दोहराया। मैंने चुप साध ली थी। ये सवारी तो बहरी है, शायद फिर गूंगी है। मुसाफिर चुप थे। अब मेरा चुप रहना मुमकिन ना रहा। भाई, मैंने टिकट नहीं लिया, किसी ने मेरे पर्स से पैसे निकाल लिए हैं। पैसे नहीं थे तो बस में चढ़ी क्यों? उस्ताद जी, उसने ड्राइवर को पुकारा, बस रोको, इस लेडी को उतारना है। ड्राइवर ने बस रोक दी। बीबी टिकट बनवाओ, फिर उतर जा। आंसू बुर्का के अंदर मेरे निकाब को भिगोने लगे। मैं आपको टिकट के पैसे अपने शहर पहुंच कर दे दूंगी, मैंने इल्तिजा की। तमाम मुसाफिर मेरी जानिब मुतवज्जे हो गए और ड्राइवर के रहा था, अब तुम शहर कहाँ जाओगी? दीरुल अमान जाओगी? अरे ये लड़की घर से भागी हुई लगती है। इतनी इहानत मेरी जिंदगी में कभी नहीं हुई थी। आज पता चला बेबसी, गुर्बत, मुफलिसी क्या होती है। आज माँ की बात याद आ रही थी कि अकेली सफर पर मत निकल। दिल कह रहा था, ये सच है कि माँ की दुआ असर रखती है। जिस काम में माँ की रजामंदी शामिल हाल ना हो, इसमें बच्चों को कामयाबी नहीं मिलती। उतर जा माई, कंडक्टर ने कहा, हमारा वक्त मत जाया कर। तब सारी बस में एक शख्स को एहसास हुआ, अरे मियाँ क्यों इस कदर बदतमीजी से पेश आ रहे हो सकता है वाकई उनकी रकम गिर गई हो। आपकी कुछ लगती है तो आप टिकट के पैसे दे दें। हिमायत करने वाले शख्स को गुस्सा आ गया। कहने लगा, वतन की लड़कियां और ख्वातीन हमारी बहन लगती हैं, कुछ सोच कर बात किया करो। और ये लो टिकट के पैसे, इसके बाद अगर बदतमीजी से बात की तो ठीक ना होगा। अच्छा साहिब, ठीक है, लाओ पैसे। हमको टिकट से मतलब है, आगे बस के मालिक को भी तो हिसाब देना होता है। रकम मिलते ही कंडक्टर की जबान बंद हो गई और बस चल पड़ी। मेरे चेहरे पर निकाब था, आंखों से इस शख्स के लिए शुक्रगुजारी के आंसू गिर रहे थे जो आगे बैठा था, और मैं उसकी सूरत भी नहीं देख सकती थी। तमाम रास्ते मुझे अपनी इहानत का शदीद एहसास होता रहा। इसके साथ ही मैं इस मुसाफिर का शुक्रिया अदा करना चाहती थी जिसने मुझे मजीद जलील होने से बचा लिया था, लेकिन वो शख्स मुझे नजर ना आ सका। यहां तक कि बस मुकर्ररा वक्त पर मंजिल मकसूद तक पहुंच गई। लोग बस से उतर गए। वो फरिश्ता सिफत शख्स भी उनके साथ उतर गया। शायद इसे शुक्रिया की जरूरत ना थी। इसकी नेकी हमारे काम आई तो सही, लेकिन इससे भी ज्यादा खुद उसके काम आई होगी, क्योंकि इसको शुक्रिया की तलब ना थी और ना ही इसको अपनी पहचान कराने की चाहत। मैं जरूर चाहती थी कि वो जाने से कब्ल मुझसे बात कर लेता कि मैं इसकी रकम घर जाकर उसको वापस कर सकूं, लेकिन वो बस से उतरते ही भीड़ में गुम हो गया और मैं इसको पुकार भी ना सकी। थके थके कदमों जब घर लौटी, माँ ने आड़े हाथों लिया, लेकिन सिवाय उनके पांव छूकर मुआफी मांगने के और किया कर सकती थी। मैंने इतना जरूर कहा कि माँ, तुमने मुझे दुआ जरूर दी होगी, क्योंकि तुम्हारी दुआओं ने इस सफर में मेरी इज्जत रख ली और मैं खैरियत से घर पहुंच गई हूं, वरना खुदा जाने मेरे साथ क्या हो जाता। नाजरीन, ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।